ہم خبر بلیٹن میں شامل کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت آج فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز شرکت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت آج فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز شرکت کر رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت آج فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، بتائیے گا۔ جی، اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کو شروع ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 3 بجے یہ اجلاس شروع ہوا تھا، جس کے اب 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز 47 ججز جو ہیں وہ شریک ہیں۔ اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شاہد امیر ڈار، جسٹس محمد یاور علی، جسٹس محمد انوار الحق، جسٹس سید قاسم رضا شمسی، جسٹس سردار محمد شمیم خان، جسٹس سید قاسم رضا شمسی سمیت دیگر ججز جس میں شریک ہیں، اس میں جسٹس عباد الرحمان لودھی، جسٹس عائشہ ملک سمیت تمام ججز شریک ہیں۔ یہ اجلاس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے مزید علاقائی بینچز بنانے کے حوالے سے غور کر رہا ہے، چونکہ فیصلہ آباد، سرگودا اور گجرانوالہ اور سمیت 5 ڈویژن کے وکلاء جو ہیں وہ عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ ان کے علاقائی بینچز بنائے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے فیصل آباد میں، گجرانوالہ، سرگودا اور سائی وال ڈویژنز میں وکلاء اس حوالے سے اپنے مطالبے کے حوالے سے ہڑتال بھی کر رہے تھے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ ان کے جو ہائی کورٹ کے علاقائی بینچز، جس طرح بہاولپور میں، راولپنڈی میں اور ملتان بینچ میں بینچز بنائے گئے ہیں، سیم ایز اسی طرح ڈویژن کی سطح پر بھی یہ علاقائی بینچز بنائے جائیں۔ حکومت نے بھی 2 سال قبل اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کیا تھا کہ حکومت 5 مزید علاقائی بینچز بنائے گی، جس حکومتی اعلان کے بعد وکلاء کا جو مطالبہ تھا وہ مزید شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد انہوں نے ہڑتالوں کا سلسلہ بھی شروع کیا اور ان کا جو سب سے زیادہ جو اس پہ جو ان کا مطالبہ جو تھا کہ جو حکومت چاہتی ہے کہ انصاف کی بروقت فراہمی کو لوگوں کی دہلیز تک جو فراہم کیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو علاقائی بینچز ہیں وہ بنائے جائیں۔ ان کا مزید یہ بھی پہلے تو وہ 1 ہفتہ تک جو ہے وہ کئی مہینوں سے یہ چل رہا تھا اور 2 ماہ قبل اس حوالے سے گجرانوالہ باہر کے وکلاء جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے مار روڈ پر احتجاج کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، جس پر سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اعجاز الاحسن جو ہیں انہوں نے انتظامی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے تمام جو علاقائی بینچز بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں، اس حوالے سے غور ہوگا۔ یہ آج کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ آج بھی امکان ہے کہ شام 7 بجے تک جاری رہے گا، کل بھی یہ جاری رہے گا اور اتوار تک جاری رہنے کا یہ امکان ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کی زیر صدارت جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں 2 باتیں اس میں زیر غور لائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا علاقائی بینچز جو ہیں وہ 5 ہی بنائے جائیں، ان میں سے کم بنائے جائیں یا بالکل نہ بنائے جائیں اور ضلعی عدالتوں کو فعال کیا جائے۔ ایک عدالتوں کی یہ بھی ذہن میں ہے کہ اگر ضلعی عدالتوں کو فعال کر دیا جائے اور لوگوں کے جو بنیادی وہاں پہ ان کے جو کیسز ہیں وہاں پہ ڈسپوزل ہو جائے، ان کو ریلیف مل جائے، تو یہاں پہ کیسز کم ہیں۔ دوسرا، ہائی کورٹ کا یہ بھی ایک ذہن ہے کہ ADR سسٹم کے تحت ثالثی نظام کو فعال کیا جائے تاکہ بہت سے چھوٹے چھوٹے مقدمات جو ہیں وہ ثالثی عدالتوں کے ذریعے ان کا حل نکالا جائے تاکہ عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں کیسز کی تعداد جو کم کی جا سکے۔ اس طرح 22A 22B کی جو یہاں پہ بہت سی درخواستیں آتی ہیں یا توہین عدالت کا امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے جو درخواستیں آتی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ متعلقہ افسران کو ڈائریکشن جاری کرتا ہے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے، انتظامی سطح کے ہوتے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ جو انتظامی سطح کے جو کیسز ہیں ان کو انتظامی سطح پہ ان کا ڈسیزن آئے۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس جو ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ، انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی ہدایت کی تھی کہ جو ان کی انتظامی امور کے معاملات ہیں وہ ان کا ڈسیزن لیں، ان کے فیصلے کریں، درخواستوں کے فیصلے کریں، یا کم سے کم لاہور ہائی کورٹ جو ڈائریکشنز ان کو جاری کرتی ہے ان کے بروقت فیصلے کیے جائیں۔ اگر وہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ بروقت فیصلے ہو جاتے ہیں، نچلی عدالتوں سے لوگوں کو بروقت ریلیف مل جاتا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ میں برڈن کم ہوگا۔ اگر ہم بات کریں لاہور ہائی کورٹ بار کی،
तो लाहौर हाई कोर्ट बार अब तक ये मुतालबा करती रही है कि इलाकाई बेंचेस ना बनाए जाएं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जो है इसकी एक तारीखी हैसियत है, पौने 200 साल इसकी पुरानी हिस्ट्री है। और अगर इलाकाई बेंचेस बना दिए जाएंगे तो जो हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है ये भी एक बेंच की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और इसके पास जो केसेस की ज़ेर समाअत इसके पास आएंगे वो सिर्फ लाहौर के होंगे, शिवपुरा के होंगे, ननकाना के होंगे या उकाड़ा के होंगे, कसूर के होंगे। सिर्फ 4 अजला के जो केसेस होंगे वो सिर्फ लाहौर के हाई कोर्ट के पास प्रिंसिपल सीट पे रह जाएंगे। और ये इसका जो तशख़्ख़ुस है या इसकी तारीख़ी अहमियत है वो उसका मकाम में फ़र्क आएगा, क्योंकि पहले ये एक लाहौर हाई कोर्ट जो है ये पाकिस्तान की एक पुरानी और तारीख़ साज हाई कोर्ट है, जहाँ पे ये जो भारतीय जो पंजाब है उसका भी कुछ हिस्सा था, दिल्ली का भी कुछ हिस्सा जो था, यहाँ तक उसकी जो साइलिन थे वो इस लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते थे। और इसके पहले बहुत से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अंग्रेज़ भी रहे और मशरक़ी पाकिस्तान से भी रहे। अब इसकी कोशिश या तो ये भी फैसला किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो मंजूर शुदा तादाद है 60 है उसको बढ़ाकर 100 किया जाए, या यही तादाद बरकरार रखी जाए, इलाके बेंचेस को मजीद बनाने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता दिनों पंजाब बार कौंसिल के जो एक मेंबरान थे उनसे भी खिताब करते हुए कहा था कि उनके जो हिस्से में आया है ये बहुत बड़ा फैसला है कि उसके इलाके बेंचेस जो हैं वो बनाए जाएँ या ना बनाए जाएँ, ये उन पर फैसला है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ दाऊद। मियाँ साहब बताएंगे ये जो आज हो रहा है 2 घंटे गुजर गए हैं, 2 घंटे से ज़्यादा का गुजर चुका है, क्या इस हवाले से आपकी क्या तजिया है, क्या होगा, क्या बनने जा रहा है? अगर लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला करती है कि मज़ीद इलाकाई बेंचेस बनाए जाएँ तो क्या इसकी तारीखी जो हैसियत है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर नहीं फैसला होता तो वकला का रद्द-ए-अमल मुमकिन क्या हो सकता है? देखिए मलिक साहब, पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वकला की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस बनाने की जो मुतालबा है वो क्यों किया जा रहा है। वकला ये कहते हैं कि फैसलाबाद, साहिवाल समेत जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे इलाकाई बेंचेस बनाए जाएँ, क्योंकि वहाँ पे से वकला को यहाँ आने में मुश्किल आती है और इसके अलावा जो साइलिन हैं उनको मुश्किल पेश आती है। अब बजाय ये कि इस मसले का हल करने के लिए आप हाई कोर्ट को तकसीम कर दें, इसका हल निकालना चाहिए। वकला की तरफ से ये जो मुतालबा किया जा रहा है इसको पहले भी हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के एक जज साहब जो हैं वो अपनी रिपोर्ट में दे चुके हैं कि हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस नहीं बनने चाहिए। एक जो दूसरी बात की जा रही है, जैसे आप कह रहे थे कि वकला का रद्द-ए-अमल क्या होगा, देखिए अगर लाहौर हाई कोर्ट जैसे अदारे ने भी वकला के दबाव में आकर फैसले करने हैं तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की अपनी आईनी हैसियत तो कोई ना हुई। हाई कोर्ट को पहले भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी, और सबसे बड़ी जो मज़े की बात है कि कोई भी ऐसा वकील नहीं है प्रोफेशनल जो इस बात के हक में हो कि हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस बनने चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमने ऑफ द रिकॉर्ड कई सीनियर वकला से, कई ऐसे वकला जो वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे भी बात की है। वो जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस मजीद नहीं बनने चाहिए। मियां साहब बिल्कुल ये बात सही है। देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर पे मुश्तमिल एक कमेटी बनी थी, उसने भी बात रिफ्यूज़ कर दी थी कि मजीद इलाके बेंचेस नहीं बनने चाहिए, और जो बनाए गए हैं रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान बेंच है या बहावलपुर बेंच है, वो एक जो फौजी आमर के दौर में बनाए गए थे, वो किसी लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं बनाए थे या वकला के मुतालबे में बने थे, बल्कि वो फौजी आमर ने बनाए थे। यह बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि मजीद इलाके बेंचेस बनने से इसकी आइनी हैसियत भी मुतासर होगी, और हाई कोर्ट का अगर 47 जजेस पे मुश्तमिल जो फुल कोर्ट है अगर ये वकला के दबाव में आके फैसला करेगा तो इसकी आनी हैसियत तो बिल्कुल ये क्या इसमें होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाई कोर्ट का जो फुल कोर्ट चल रहा है उसने पहले वकला से बहुत ज्यादा ऑफ द रिकॉर्ड फीडबैक लिया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो वकला हैं उन्होंने इनफरादी हैसियत में जो है लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहबान को, खसूसी तौर पर चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को ये फीडबैक दिया है और कहा है कि हाई कोर्ट के जो इलाकाई बेंचेस हैं वो नहीं बनने चाहिए। और इसकी देखिए फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन चुकी है, तो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच भी काम कर रहा है। अब कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर देखा जाए तो इस्लामाबाद के और पिंडी के जो इलाकाई केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने चाहिए। अब रावलपिंडी का वहाँ पे बेंच खत्म करना चाहिए। लाहौर
बहुत शुक्रिया मलिक। बता रहे थे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की ज़ेर सदारत आज फुल कोर्ट इजलास हो रहा है। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत कर रहे हैं। इजलास में हाई कोर्ट के मज़ीद इलाकाई बेंचेस बनाने के बारे में भी फैसला किया जा रहा है। फैसलाबाद समेत 5 डिवीजन के वकला ने इलाकाई बेंचेस बनाने का मुतालबा कर रखा है। एक मरतबा फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक अशरफ, उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ, इजलास का एजेंडा क्या है, बताइएगा। इलाके बेंचेस की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर सिर्फ सिस्टम ठीक कर लिया जाए तो ना तो इलाकाई बेंचेस की जरूरत पड़ेगी और ना ही फुल कोर्ट के सामने जो एक और तजवीज़ ज़ेर गौर है कि हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 100 कर दी जाए, ना ही उसकी जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप हाई कोर्ट के 100 जजेस, वकला का मुतालबा है कि हाई कोर्ट के जजेस 100 किए जाएं, आप 100 हाई कोर्ट के जजेस कर लेते हैं। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 1.5 लाख मुकदमा पेंडिंग है। वो 100 जजेस आते हैं, आकर केसेस डिसाइड कर देते हैं और पीछे रह जाता है सारा 50,000 मुकदमा। तो फिर हाई कोर्ट के 100 जजेस क्या करेंगे? तो बेहतर ये है कि जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए, ना कि हाई कोर्ट को तकसीम दर तकसीम करते जाए। अच्छा, अच्छे जजेस ढूंढना भी तो बड़ा मसला है ना। जिस तरह कहते हैं कि जलिया में बहुत से ऐसे जज हैं जो अहल नहीं है। अगर हाई कोर्ट में अहल जज जो है 60 कर दिए जाएं, अहल जज ढूंढना भी तो एक मसला है। 100 जज तो बड़ी दूर की बात है। अगर यहाँ पे 50 या 40 जज ही अहल आ जाएं तो ये तो डिस्पोजल बड़ी आसानी से, रिलीफ मिलना बड़ा आसान है, डिस्पोजल बड़ी आसान है। रीजनल फंक्शन जो डिस्ट्रिक्ट जस्टिस है वो फाल हो जाए और यहाँ पे अहल जज यहाँ पे तैनात हो जाए, नए जजेस आ रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए मलक साहब, इस हवाले से जज किस तरह अहल होंगे, किस तरह अच्छे जज आ सकते हैं, उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अच्छा फैसला मौजूद है, जिसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया था जब वो जज थे और अब वो चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस रखते वक्त जो हाई कोर्ट के 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है वो तमाम उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करे, उनकी जांच पड़ताल करे और उनको अच्छे तरीके से उनके कवायद जानने के बाद, उनका इल्म जानने के बाद, उनके रिपोर्टेड मुकदमात जानने के बाद फिर उनको जजेस लगाने का फैसला किया जाए। अगर हाई कोर्ट अपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर लेती है तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट को अच्छे जजेस मिल जाएंगे। और आज भी हाई कोर्ट में अच्छे यहाँ पर ऐसे वकला मौजूद हैं जो बहुत काबिल हैं और वो अगर जज तैनात हों तो उनको वो हाई कोर्ट की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम यहाँ पर रोज़ाना रिपोर्टिंग करते हैं, हम ये देखते हैं कि हाई कोर्ट में अब जैसे जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हैं, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में उनसे अच्छा और क्विक जहन रखने वाला कोई फौजदारी जज अवेलेबल ही नहीं है। बाकी तमाम ऐसे जजेस जो फौजदारी जजेस हैं वो केसेस को सुनते या मर्डर ट्रायल का फैसला करते वक्त कई दिन लगा लेते हैं या वो नोट्स लेने में काफ़ी टाइम लगा लेते हैं, लेकिन जस्टिस मुज़ाहर नकवी साहब दिनों के अंदर मर्डर ट्रायल्स का फैसला करते हैं और उनके फैसले सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड हो रहे हैं। अगर मुज़ाहर नकवी साहब जैसे जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में मौजूद है तो इसी तरह अगर रिसर्च की जाए, कोई भी जज तैनात करने से पहले उसके कवायद अच्छे तरीके से जाना जाए, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से जाना जाए, उसकी प्रैक्टिस को अगर अच्छे तरीके से जाना जाए तो ये मसला भी हल हो सकता है। बजाय ये कि आप 100 जजेस रखें, बेहतर ये होगा कि आप अच्छे 60 जजेस जो हैं उनसे हाई कोर्ट को मुकम्मल कर लें। ये बहुत बड़ा फैसला है और इस पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जो जैसा चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह की जैसा इजलास जारी है और खुले जहन के साथ वो सोच रहे हैं मुख्तलिफ जो दीगर जो हुकूमतें हैं उनमें जो सिस्टम है इलाकाई बेंचेस का उसको भी गौर किया जा रहा है। यहाँ पे ज़िली अदालतों के निज़ाम को फाल करना और ADR को फाल करना, इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जो केसेस की नोयत है उसको फाल करने के बाद जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी, इस हवाले से गौर किया जा रहा है। 2.25 घंटे गुजर चुके हैं और इम्कान है कि ये इजलास 7:15 बजे तक 7 बजे के बाद तक ये जारी रहेगा। कल भी ये इजलास जारी रहेगा और इसके बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के मज़ीद इलाकाई बेंचेस बनाए जाएँ या ना बनाए जाएँ, कम बनाए जाएँ या क्या किया जाए, इस हवाले से ये फैसला ये फुल कोर्ट इजलास करेगा। जी।